Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So in today's video, we will discuss about these things, and in last video, I talked about demand, its type, characteristics and difference between market and aggregate demand. So we know what is individual demand. Individual demand refers to quantity of a commodity, that is a single commodity, that a consumer, that is individual consumer, is willing and able to buy at different possible prices during a given period of time. So we have already discussed that what is individual demand. Now we need to discuss what are the factors which affect individual demand, or you can say determinants of individual demand. So let's start. So whenever we are analyzing change in one factor, we need to take other factor constant, and this is our assumption. Because in real life, demand is affected by many factors, but we are at the initial stage, we are building a base. So we need to know in detail that what are the factors which affect, how they affect individual demand. So to understand one thing, we need to keep other things constant. Otherwise, other factor will influence our analysis, our study. Fine. So this is our assumption that we take other factors constant. And when we are seeing change in the price of a commodity, so we take all other things constant, all other factors constant, then this is known as ceteris paribus. Fine. Now let's read about the factors directly. Price of the given commodity. So yeah, the very first thing is other factors being constant. So price is one of the most important factor that influence consumer decision, that affects consumer, influences consumer, that affects demand of a given commodity is price. Now let's take one example, and let's suppose the given good is potato. If price, that is current price of potato, is rupees 30. Fine. If the current price, px means the price of the good x, and good x here is potato. If price, that is currently, we are talking about the current scenario, if the current price is rupees 30, when price is 30, the consumer is purchasing 1 kg. When price falls, suppose कुछ हुआ इकोनॉमी में, प्राइस फॉल हो गया, मीन्स नाउ प्राइस इज 15, आई विल बाय मोर. इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर आप अपने को लेकर के सोचो, पहले प्राइस 30 था तो आप सिर्फ 1 kg कंज्यूम कर रहे थे, अभी प्राइस कम हो गया तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे. इट्स वेरी लॉजिकल. ठीक. आई विल बाय मोर. वाई आई विल बाय मोर? बिकॉज नाउ इट इज चीप, सस्ता है मेरे लिए खरीदना, सो आई वुड परचेज 2 kg. नाउ व्हेन प्राइस राइजेज अप, अभी प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से नहीं कितने तक इंक्रीज हुआ, 45 इंक्रीज हो गया. ठीक है. नाउ आई वुड बाय ओनली हाफ kg, एज नाउ इट इज वेरी कॉस्टली फॉर मी टू बाय 1 kg. इनिशियल क्या था, 30 था, 30 से 1 kg हुआ. देन वी टुक 2 केसेस, दैट व्हेन 30 से 15 होगा तो क्या होगा, एंड 30 से 45 होगा तो क्या होगा. नाउ don't get confused that how I decide that when price is 30 I am buying 1 kg, when price is 45 I am buying half kg. So actually what happens, the law of demand, which we will read in the upcoming videos, it tells, तो law of demand ये बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी कंज्यूमर जो है वो परचेज कम कर देगा. बट लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कितने से कम करेगा, है ना. सो अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, अपने एग्जाम्पल को अच्छे से समझाने के लिए, आई टुक दीज नंबर्स. आप भी कोई और नंबर भी यहाँ पे ले सकते थे, बट यस, जो मेन चीज है वो ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल होती है. ठीक है. सो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, दैट व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग मीन्स जब प्राइस 30 से 45 हो गया, तब डिमांड 1 kg से हाफ kg हो गई, मतलब डिमांड फॉल हो रही है. एंड व्हेन प्राइस फॉल हो रहा है, दैट इज व्हेन 30 से प्राइस 15 हो गया, 30 से प्राइस 15 हो गया, तब डिमांड इंक्रीज हो गई. मतलब अगर आप पहले 1 kg कंज्यूम कर रहे थे तो अभी आप 2 kg कंज्यूम कर रहे हो. इसका मतलब क्या है,
कि इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रही है ना। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। The second factor which affects individual demand is related goods. So related goods are the goods which share relationship with each other. तो related word आया है relation से. So related good are of two types. The first one is substitute and the another one is complementary. And the next one is unrelated good which do not share any relationship with each other. So let's read first about how price of substitute and complementary good affects demand of a given commodity. So first we are taking our assumption जो कि है that other factors being constant. अभी हम पढ़ेंगे substitute good के बारे में. Fine. So substitute goods are the goods which are used in place of each other. For example, Sprite and Fruity. If you go to the shop, you want to drink Fruity, but it is not available, so you will buy Sprite. Or you buy Sprite, you bought Sprite. So you consume Sprite in place of Fruity. So they are the substitute goods which can be used in place of each other. मतलब कि वो consumer को satisfaction same देते हैं. सेम देते हैं बट वी कैन नॉट से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हर एक एंगल से फिट होते हैं. जैसे कि अभी फ्रूटी और स्प्राइट का एग्जांपल लिया, ये टेस्ट में थोड़ा डिफर करेंगे, मे बी पॉसिबल प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यस एक जो पर्पस है वो फुलफिल कर देंगे. ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटेटिव गुड्स. वाई? Because they give competition to each other. Like in the previous example, you buy Sprite. So Sprite की सेल ज्यादा हो गई, तो इसीलिए क्या रीजन है, ये एक दूसरे को कंपटीशन देते रहते हैं. Let's take one example. Let's take the given good is shoes and substitute of given good and is slipper. Fine. If price of slipper increases, अगर स्लीपर का प्राइस इंक्रीज होता है, स्लीपर क्या है, substitute good है. So now it is costly for you to buy slipper. So you want to switch to given good, or you want to change your consumption. You want to make shift to consumption of another commodity, and that commodity is given good. So as you know, price of slipper is increasing. Now it is costly for you to buy slipper. उसकी डिमांड कम हो जाएगी, स्लीपर की डिमांड, लेकिन उसकी जगह कुछ ना कुछ तो पहनेंगे ही ना हम, तो वो क्या होगा, शूज होगा, क्योंकि गिवन गुड वो है. तो उसका अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है सब्स्टिट्यूट का, तो यहां पर डिमांड शूज की इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्लीपर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अब वो हमारे लिए कॉस्टली है कंज्यूम करना. कंज्यूमर के लिए उसको कंज्यूम करना कॉस्टली है. वो क्या करेगा, दूसरे गुड पर स्विच कर जाएगा. जब वो दूसरे गुड पर स्विच करेगा तो उसकी डिमांड तो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और वाइस वर्सा होगा कि अगर आपका प्राइस फॉल कर जाएगा, तो अगर स्लीपर का प्राइस फॉल कर जाएगा तो जो डिमांड है शूज की वो भी फॉल कर जाएगी. क्यों? अगर स्लीपर का प्राइस फॉल करता है, मतलब अब आप उसको खरीद सकते हो. ठीक है. आप स्लीपर को ज्यादा खरीद सकते हो आप स्लीपर को, क्योंकि अभी वो सस्ता हो गया, अभी वो चीप है. डिमांड ऑफ शूज का इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो लोग शूज को भी पहले खरीद रहे होंगे ना, अब वो स्लीपर पर स्विच कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी वो सस्ता है, इस वजह से. ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन given commodity and price of substitute goods. Fine. Now complementary goods. So complementary goods are those goods which are used together, and very popular example is bread and butter, tea and sugar. Fine. So now let's take one example. So given good is shoes. Again हमने given good shoes लिया है, and it's complementary. That is complementary of given good. That is shoes. ठीक है. When price of socks increases, so price of socks, so socks is a complementary good, and when price of complementary good is increasing, means now it is costly for you to buy socks, है ना.
प्राइस जिसका भी इंक्रीज हो जाता है तो अब आपके लिए वो चीज कॉस्टली हो जाती है कंज्यूम करना. So you will consume it less or you will shift your consumption. When you are shifting or demanding less than the good which is used with it, which is shoes in our case, its demand also fall. Why? Because we use shoes with socks and as socks की demand fall हो रही है, so our demand for shoes will also fall as price of socks is increasing. देखो क्या हुआ, सॉक्स का प्राइस इंक्रीज होता है. अगर सॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सॉक्स की डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन हमको इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, गिवन गुड्स के ऊपर देखना है. तो जो चीज हम साथ में यूज करते हैं तो वो तो साथ में ही यूज करेंगे ना. सॉक्स और शूज को हम साथ में यूज करेंगे ना. अगर एक को आप कम यूज कर रहे हो तो दूसरे को तो ऑटोमेटिकली आप कम यूज कर दोगे ना. तो ये पॉइंट है. ठीक. और अगर इसका ऑपोजिट होता है, अगर प्राइस सॉक्स का फॉल कर जाता है तो क्या होगा, डिमांड शूज की इंक्रीज हो जाएगी. अगर सॉक्स का प्राइस फॉल कर जाता है, अगर सॉक्स का प्राइस फॉल कर जाता है मतलब अब वो चीप है आपके लिए सॉक्स को खरीदना. ठीक है, सॉक्स को खरीदना चीप है तो उसके साथ जो चीज यूज होती है जो कि शूज है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. Means there exists an inverse relationship between demand of given good and price of complementary good. क्यों? क्योंकि अगर सॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड गिवन गुड की फॉल हो जाती है, क्योंकि वो दोनों चीजें साथ में यूज होती हैं. जिसका भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका तो अपनी जो डिमांड है वो कम होगी ही होगी. अब वो जिसके साथ यूज हो रहा है तो उसकी भी तो डिमांड कम हो जाएगी. और सेकंड केस में भी यही है, प्राइस सॉक्स का फॉल कर गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. जब हम सॉक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो शूज को भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे. ठीक है. नाउ अनरिलेटेड गुड्स. सो एज आई डू टोल्ड यू ऑलरेडी दैट अनरिलेटेड गुड्स आर द गुड्स विच डू नॉट शेयर एनी रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो आप ये कह सकते हैं कि like in this slide हमने दो images लिए हैं. The first one is car and the second one is shoe. If price of car increases, the demand of shoe remains same. कुछ भी नहीं होगा demand of shoes को ना. shoes की demand पे कोई effect नहीं पड़ेगा. तो ये relationship नहीं share कर रहे हैं दूसरे के साथ. तो therefore they are called unrelated goods. The third factor and also the one of important factors, income of consumer. So generally what happens, higher the level of income, higher will be demand for given commodity. और ये काफी मतलब लॉजिकल सा है. आप अपने घर में भी देख लो कि जब भी किसी की सैलरी इंक्रीज हुई है आपके घर में, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको जब भी कुछ पैसे मिले हैं तो आप क्या करते हो, कंजम्पशन ज्यादा करते हो, कंजम्पशन करते हो, पैसा खर्च करते हो, डिमांड करते हो. दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉमोडिटी. सो देयर आर टू गुड्स. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स. सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच द डिमांड राइजेस विद राइज इन इनकम. तो ये इनकी डेफिनेशन है कि इनकी डिमांड इंक्रीज होगी अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है. ठीक है. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सो द गिवन गुड इज आइसक्रीम एंड सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस. Means now consumer is in position to buy more. The good which you are consuming more when your income is increasing, it is normal good. कोई भी good आप कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो कब, जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई. डिमांड कब कर रहे हो उसकी, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, हुई है, तब वो क्या होगा, वो तब होता है हमारा नॉर्मल गुड. मतलब क्या हुआ इसका कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड. द नेक्स्ट वन इज इंफीरियर गुड्स. सो इंफीरियर गुड आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. देखो ये किसी टाइप के गुड्स नहीं होते. ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल गुड का एक टाइप होता है और इंफीरियर गुड का एक टाइप होता है. नहीं, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि डिमांड फॉल हो जाएगी विद राइज इन इनकम. तो आप इकोनॉमी में कोई भी गुड को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये नॉर्मल होगा, ये इंफीरियर हो जाएगा. आप अपने लिए तो बता सकते हो लेकिन दूसरों के लिए आप नहीं बता सकते हो. ठीक. सो इंफीरियर गुड वो गुड है जिनकी डिमांड फॉल हो जाएगी विद राइज इन इनकम. सो नाउ
again we are taking the given commodity is ice cream, so increase in its demand, and when this happens it means there is an inverse relationship. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड. डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड कैसे फॉल हो गई है. इंफीरियर गुड का डिस्क्रिप्शन ही यही है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉल हो जाएगी. ठीक है, ये इनका डिस्क्रिप्शन है. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज दैट इंफीरियर इज अ बैड क्वालिटी गुड. कोई भी गुड इंफीरियर या नॉर्मल नहीं है. ठीक है, और इंफीरियर का मतलब कोई बैड क्वालिटी नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट और ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल कंज्यूमर पर. नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, अभी सब क्लियर हो जाएगा. सपोज योर इनकम इज ₹50,000 एंड आपके बॉस की है 80,000. योर इनकम एंड योर बॉस इनकम इंक्रीजेस बाय 20%. सो नाउ योर इनकम इज 60,000, योर बॉस इनकम इज 96,000. As your income increases, so you will consume normal good more. If you are consuming, so earlier if you are consuming local brand ice cream, now you will consume branded ice cream. For you, local brand ice cream is an inferior good and branded ice cream is normal good. ये आपके लिए है. ठीक है, बट आपके बॉस की सैलरी भी तो इंक्रीज हुई है. सो सपोज ही इज कंज्यूमिंग, लाइक करंटली वो क्या कंज्यूम कर रहा है, ब्रांडेड आइसक्रीम. बट एज हिज इनकम इंक्रीजेस, सो ही विल कंज्यूम नाउ टॉप क्वालिटी ब्रांडेड आइसक्रीम. सो फॉर हिम टॉप क्वालिटी ब्रांडेड आइसक्रीम इज नॉर्मल गुड एंड ब्रांडेड वन इज इंफीरियर. मतलब कि जो आपके लिए नॉर्मल गुड था वो आपके बॉस के लिए तो इंफीरियर हो गया. तो इंफीरियर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बैड क्वालिटी है या कुछ घटिया चीज है. सो इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. ठीक है, एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी विल वर्क. जो गुड्स आप अभी चाहते होंगे, हो सकता है वो किसी के पास वो अभी ना हो, आपके लिए वो इंफीरियर हो सकते हैं लेकिन किसी और के लिए वो नॉर्मल हो सकते हैं. ठीक है, नाउ द फोर्थ फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सो consumer has a taste for a good, and as taste and preferences change, the demand also changes. So whenever there is a change in fashion habits, or if a commodity is in fashion, then demand for such commodity rises. और अगर इसका opposite होता है, when consumer has no taste for commodity या कोई चीज फैशन में नहीं है, तो क्या होगा, डिमांड फॉल हो जाएगी. It means that there exists direct relationship between change in taste and preferences and demand for good. The next factor which affect individual demand is expectation of change in price. If consumer is expecting an increase in price, then the current demand for a commodity increases. Why? Because they will buy at future. It cost, देखो, कंज्यूमर को ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, वो आज ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, तो वो आज ज्यादा डिमांड करेंगे. डिमांड ज्यादा हो जाएगी आज, भले वो घर में स्टोर करके रखें या जो भी करें, लेकिन डिमांड आज के दिन में ज्यादा हो जाएगी. आज का दिन मतलब आज में. ठीक है, but if they are expecting a decrease in price, then the current demand for a commodity falls. क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा. अगर फ्यूचर में प्राइस कम ही हो जाएगा तो हम आज क्यों खरीदें, हम आज महंगा क्यों खरीदें. महंगा खरीदने की जरूरत क्या है, हम तो तब खरीदेंगे ना जब प्राइस सस्ता हो जाएगा, जिससे कि हमको फायदा हो. तो अगर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऐसी चल रही है कंज्यूमर्स की कि प्राइस डिक्रीज होगा, सबसे पहली बात तो ये एक्सपेक्टेशन है, होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. दे आर जस्ट क्या कर रहे हैं, वो एक मान के चल रहे हैं, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं ऐसा होगा, प्राइस डिक्रीज होगा. अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगा तो आज डिमांड कम हो जाएगी. क्यों कम होगी, क्योंकि फ्यूचर में सस्ता मिलेगा, तो हम आज क्यों खरीदें, है ना. इसका मतलब क्या है,
decrease in price in near future will decrease the demand for given good right now. So there exists a direct relationship between expectation of change in price and demand for good. अगर expectation positive है, अगर expectation ये है कि price increase हो रहा है, तभी डिमांड अभी एट प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. डायरेक्ट रिलेशनशिप जा रहा है. अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, एक्सपेक्टेशन है कि डिक्रीज होगा, तो डिमांड अभी कम हो जाएगी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.